हाँ जी बच्चों, +2 ਚੈਪਟਰ 3 ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤੋ ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਮਤਲਬ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਡਰਡ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ordered rectangular array of numbers or functions। तो बेसिक एक आइडिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, -2 0 1 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਕੋਈ ਅਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 1 2 3 4 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਨੋ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਰੋ ਫਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ, ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਡਾਊਨਵਰਡਸ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲਮਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਮ 1 ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਮ 2। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੀ ਫॉर ਵਾਟ, ਕਾਲਮਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਨਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 0 3, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ। ਔਰ ਕਾਲਮ ਕਿਤਨੇ, ਲੈਟਸ ਸੀ 1 2 3। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1, ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਟਾ 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने से, हाँ जी 2, कितने से, 2 से। क्लियर होगा जी इतना? अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लो, हाँ बेटे, एक और एग्जाम्पल जी हैगी है, लेट्स सी। देखो जरा, ये मेरे को है 1 3, इस दे विच नंबर ऑफ रोज़ देखिए कितनियाँ है नंबर ऑफ रोज़। चलो बोलो शाबाश। ये हो गया रो 1 हॉरिजॉन्टली, रो 2, और कॉलम की है, सिंगल है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स
ਹੋ ਗਏ 1। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। तो रोज़ और कॉलम्स बारे सानू पता लग गया। अच्छा हुण देखो जदों भी असी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है तो किद्दां लिखीदा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किद्दां लिखीदा? पहला असी की लिखनी है रोज़ बाय कॉलम्स। किवें? जिवें आपां कहने कि असी रूम बनाना है, एक रूम बनाना है, रैक्टेंगुलर रूम है, असी बनाना है 20/12 ਦਾ 20/12 ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਰੋਜ਼ ਬਾਏ ਕਾਲਮਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। तो फंक्शंस किद्दां? से साइन एक्स है ना, एक्स इत्थे 2x + 3 cos x। देखो इस च ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन है इस दे विच। ठीक, तो ये भी की है? मैट्रिक्स है। अगों आ गया कि मैट्रिक्स का जी नोटेशन तो देखो तुहानूं पता लग गई स्क्वायर ब्रैकेट्स के नाल है। हुण मैट्रिक्स नूं अगर आपां कोई नेम देना कि ये किहड़ी मैट्रिक्स है, इसनूं से नेम दे दो ए, तो कैपिटल लैटर्स दे नाल बेटे इसनूं आपां ने नेम देना है। आह वाली मैट्रिक्स नूं की नेम दे सकते हैं? से बी। ठीक हो गया जी, ओके। तो हुण तुहानूं पता लग गया कि मैट्रिक्स की है? एक रैक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का या फंक्शनस का। तो उसका ऑर्डर बारे आपां गल कर रहे सी, तो आपां ऑर्डर की भी नाल दे नाल प्रैक्टिस करनी शुरू कर दईए कि इस दे विच नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? इधरों 2 और कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका जोड़ा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहला की लिखांगे 2/2। फाइन। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटे तुहानूं पता लग गया। चलो एक होर प्रैक्टिस करते हैं। एक मैट्रिक्स सी लिखते हैं, एक मैट्रिक्स सी लिखते हैं 1√3 2 0 -1 -3 5 4 2। ठीक है, इस तरह एलिमेंट्स लिखते। हुण देखो रोज़ बेटे किद्दां चलूगा? रोज़ इदां हॉरिजॉन्टली, इदां की आएंगे कॉलम्स आएंगे। तो कितनियाँ रोज़ हैं? रोज़ कितनियाँ हो गया? नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़ कितनियाँ हैं? 3 हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। तो इसका ऑर्डर है 3/3। और इत्थे भी लिख सकते हैं, इत्थे भी लिख सकते हैं 3/3। ठीक, हुण थोड़ा जिहा आपां नूं पता लगना शुरू हो गया। तो मैं लिख सकदा, देखो एक मैट्रिक्स है सी, इत्थे ऑर्डर तुसीं लिख सकते हो ऑफ ऑर्डर 3/3। समझ लग गया जी? जिस तरह ये ए मैट्रिक्स सीगी, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना सी? 2/2। अच्छा चलो हुण मैं एक आपां टास्क लैंदे हां। राइट ए मैट्रिक्स, राइट ए मैट्रिक्स डी, और इत्थे मैं लिखता 2/3, 2/3। तो बेटे सब तो पहला की आंदियां? ये होंदियां नंबर ऑफ रोज़, और ये की नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, लिखिए वाली डी मैट्रिक्स 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। 2 रोज़ हो गए और 3 कॉलम्स हो गए। 5 -1 2 0 1 3। तो देखो कितनियाँ रोज़ हैं? 2 रोज़ हो गया, रो 1 और रो 2, और कॉलम्स हो गए 3। तो ये 2/3 दी मैट्रिक्स डी बन गई, रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गई। गुड, ठीक है। हाँ जी बेटा देखो ये है एक मैट्रिक्स ये है, कितनियाँ रोज़ हैं इस दे विच? हाँ जी 3 हैं, कॉलम्स 3 हैं। तो दिस इज़ 3/3 मैट्रिक्स। हुण अगर आप नंबर ऑफ एलीमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एलीमेंट्स निकालने हैं, तो किस तरह निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, तुहाडे कोल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, बस इसका आंसर फाइंड आउट कर दो। 9 हो गया, तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 9। तो इट इज़ क्लियर, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए तो 3/3, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन मल्टीप्लाई करके जितना आंसर है 9 एलिमेंट्स हो गए। तो जो ये नंबर्स हैं
ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਓਕੇ ਜੀ, देखो बेटे क्वेश्चन है हाउ मैनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 2x2 विद ईच एंट्री 0 और 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 2x2 ਆਰਡਰ ਦੀ 2x2 ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ ਹੈ 2 ਕਾਲਮਸ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਗਏ 4। ਠੀਕ, ਇਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਮੈਟ੍ਰਿਸਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏ 0 ਔਰ 1। मतलब इत्थे 0 और 1, इत्थे भी 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। इट मीनस कि हर एक प्लेस के उपर साढ़े कोल नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस प्लेस कितने हो गए 2 हो गए। तो जिमें लास्ट ईयर तुसी परमुटेशन एंड कंबीनेशन किया सीगा कि साढ़े कोल अगर 4 डिजिट नंबर है, ठीक, और 2 डिजिट्स के नाल इसनूं असीं फिल कर सकते हैं, चॉइस है साढ़े कोल, तो इत्थे नंबर ऑफ वेज 2 हो गए सी, ਇੱਥੇ ਵੀ 2, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 2। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਗਈ 4 ਹੋ ਗਈ। ठीक हो गया। तो इसी तरीके नाल जो 2x2 मैट्रिक्स बनानी है यूजिंग एंट्रीज 0 और 1, तो हर एक प्लेस ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵੇਜ਼ ਹੈ। तो टोटल कितनी प्लेसिस हैं 4। तो इत्थे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो गई 2, देखो 2 है, 2 वेज हैं और कितनी प्लेसिस हैं देखो 4, 2 दी पावर 4। आंसर इज़ 16, राइट। इसी तरीके नाल बेटे आप ये भी कर सकते हैं हाउ मैनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, ऑर्डर की है 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो सोचो अगर 3x3 है, अगर 3x3 मैट्रिक्स हैगी है तो उस नंबर ऑफ एलीमेंट्स हो गए 9, तो अपन ने 9 प्लेसिस में फिल करना है। तो और नंबर ऑफ वेज साढ़े को कितने हैं 2। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो गई, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस 2 × 2 × 2 9 टाइम्स 2 दी पावर 9। इसनों तुसी अगर सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 512। समझ आ गया जी, ठीक है। और एक क्वेश्चन तुहाडा होमवर्क है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री, ये मैं तुहानूं करवाता। आ सैकेंड वाला तुसी करके बेटे दस्सिओ कमेंट्स दे विच इसदा आंसर तुसी मैनूं दसना है, ठीक है बेटे। देखो बेटे मैट्रिक्सिस नाल तुहाडी थोड़ी जी पहचान हो गई। हुण तुहानूं दसदे हां कि मैट्रिक्स नूं जनरल फॉर्म च आपां किवें लिखना है, जिहड़ी उसदी जनरल फॉर्म है वो किवें बेटे लिखी जाती है। तो आपां थोड़ा जिहा इसनूं ध्यान नाल समझ लईए। देखो चीज़ां नूं किवें आपां समझदे हां। सब तो पहला स्क्वायर ब्रैकेट पाती, इत्थे जो एक मैट्रिक्स ए है इसका जिहड़ा एलीमेंट ए वाला है, इसनूं मैं पहला इदां लिखदा, फिर आपां इहनूं पढ़ना सिखांगे भी इदां क्यों लिखिआ, ठीक है ना। इसनूं मैं इदां लिखदा, फिर इदां क्यों लिखिआ इहदे बारे आपां हुण गल करांगे जी। लिखण दा वे देखो की है, लिखण दा वे की है भी एक बार फिर समझ लो। ए जिस तरह 1 1 इदां पाना है, इदां नहीं पाना, ये गलत है। A 2 1 इस तरह पाना, उहदे फुट च पाना, ठीक है। तो असल च बेटे की हुंदा है कि एलीमेंट्स ना जिवें आपां एड्रैस देखना है, एड्रैस किदां भी एलीमेंट किहड़ी पोजीशन ते पिया है। तो उनका फिर तरीका की हुंदा है, फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा ये एलीमेंट जिहड़ा मैं ये सर्कल किया है, ये फस्ट रो च है तो फस्ट कॉलम च है, फस्ट रो फस्ट कॉलम, ठीक है, तो मन है। और इसनूं की है एलीमेंट है कित्थे फस्ट रो एंड इन सैकेंड कॉलम, ठीक है। आ देखो रो 1 है, कॉलम 1 है, रो 1 है, कॉलम 2 है, रो 1 है, कॉलम 3। एलीमेंट कित्थे है इन फस्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 3 हो गया। हुण देखो हुण ईजी हो गया। हुण ये एलीमेंट कित्थे है, पहला रो बोलना है, हमेशा की बोलना, पहला रो बोलिया करो फिर कॉलम बोलिया करो,
किनवी रो च है, सेकंड रो च है, किनवे कॉलम च है, फर्स्ट कॉलम च है। तो एलिमेंट इन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट इन सेकंड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट इन सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 हो गया। इसी तरीके नाल हुण तुसीं ये आप बोलण दी प्रैक्टिस करो, बोलो शाबाश। एलिमेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट इन थर्ड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਤੋ ਜਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਸਿਕਸਥ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਐਥ ਰੋ ਹੈ ਔਰ ਜੇਐਥ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3, ਇਹ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ 1 2 ਐਂਡ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਰੋ, 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ, ਥਰਡ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਥਰਡ ਰੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਏ ਆਈ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਆਈਐਥ ਰੋ ਐਂਡ ਜੇਐਥ ਕਾਲਮ। ਚਲੋ ਲਿਖੀਏ, एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। तो बेटे तो एलिमेंट हो गया, ये सारे वास्ते हो गया, ये सारे वास्ते एक ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਤਾ, ਪਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਰਡਰ ਲਿਖ ਦਈਏ 3/3। ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮਝ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ m/n। ਫਾਈਨ, m/n। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਰਾ ਸੋਚੀਏ, a11, ਠੀਕ, a12, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮਸ ਹੈ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, करते 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 फर्स्ट रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने n, इत्थे n आ जाएगा। समझ लग बेटे? हुण फिर देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, चलते 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 सेकंड रो nth कॉलम। इसी तरीके नाल बेटे साडे कोल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, एक टाइम ऐसा आएगा सी mth रो ते पहुँच जाएंगे, तो mth रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट जड़ा है mth रो सेकंड कॉलम, करते 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 एलिमेंट एट mth रो एंड nth कॉलम। तो लास्ट वाला जड़ा है, लास्ट वाला जड़ा एलिमेंट है वो की है mnth एलिमेंट हो गया, mn। समझ लग गया जी? तो एक मैट्रिक्स ਨੂੰ अगर आप जनरलाइज्ड फॉर्म 'ਚ लिखना होवे तो देखो aij किस ਨੂੰ रिप्रजेंट करता है, सारे एलिमेंट्स ਨੂੰ रिप्रजेंट करता है, और m/n उसका की हो गया, ऑर्डर हो गया। और i ਦੀਆਂ वैल्यूज़ कित्थों तो कित्थों तक ने, i तो दसिया सी नंबर ऑफ रोज़, समझ लो है ना, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है m, तो ith रो है 1 2 3, कितों तक चलनगियाँ रोज़, m तक चलनगियाँ, आ देखो। और जे की है कॉलम्स, कॉलम दसया कॉलम की पोजीशन jth कॉलम, कॉलम कितने n 1 2, देखो 1 2 3, कितों तक चलणगे n तक नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। इस तरीके नाल हो गया। समझ आ गई बेटे? तो फिर समझो, मान लो कोई b मैट्रिक्स है, उसके एलीमेंट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ जनरलाइज्ड फॉर्म 'ਚ bij लिखिया, ठीक, और इत्थे मैं लिख दिता 3/4। तो ये 3/4 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब आई जिहड़ा है इस दे विच आ देखो नंबर ऑफ रोज़ होंदा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आई जो है 1
2 3 और जे कितना होएगा 1 2 3 अप टू 4। इस तरीके ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। समझ आ गया। और अगर ये मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट करनी हुई, अगर ये मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट करनी हुई तो किद्दां कंस्ट्रक्ट होएगी। देखो रोज़ कितनियां होणगीਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 होणगीਆਂ R1 R2 R3। ਤੁਹਾਨੂੰ बेटे लिखण की जरूरत नहीं R1 R2 R3 सिर्फ समझाने वास्ते है। और कॉलम्स कितने होणगे इस दे ਵਿੱਚ C1 C2 C3 C4 और एलीमेंट्स उस दे जिवें फस्ट मान लो फस्ट एलीमेंट लिखना है। फस्ट एलीमेंट किवें लिखांगे एलीमेंट किस दा मैट्रिक्स बी दा मैट्रिक्स बी दा फस्ट एलीमेंट इन फस्ट रो फस्ट कॉलम एलिमेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड एलिमेंट इन फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम और लाइकवाइज एलिमेंट इन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इन सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट इन सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट इन सेकंड रो फोर्थ कॉलम और लाइकवाइज फिर ये 3 1 3 2 3 3 3 4 और लास्ट वाला टैली करो। लास्ट वाला जो होएगा ना लास्ट वाला वो बिल्कुल ऑर्डर नाल मैच करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स साढ़े कोल कितने है 12 टोटल नंबर चेक कर लो 4 इन ईच रो 3 जोड़े है देखो 1 2 3 4 8 और 3 साढ़े कोल रोज़ हैं तो हर एक रो के साढ़े कोल 4 एलीमेंट्स है टोटल 12 नंबर ऑफ एलीमेंट्स हो गए। ठीक हो गया जी। और हुण कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ां जरा चेक करो देखो जरा A11 A22 A33 है ना इस तरह ही आ देखो ये जोड़े एलीमेंट्स हैं B11 B22 B33 इन्हां विच की चीज़ नोटिस कर रहे हो इस आई और जे की हैं इक्वल है आई और जे की हैं इक्वल है। तो अगर तुहाडे कोल सपोज A11 है A22 है A33 है तो इस दे विच की हुंदा है आई इक्वल्स टू की है जे है। ठीक है मतलब ith रो jth कॉलम सेम है। और अगर तुहाडे कोल इस तरह है A21 हाँ जी A23 है A12 है A13 है इन्हां दे विच की है आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। समझ आ गई जी इस आई नॉट इक्वल टू जे है। हुण बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ां आपां करन लगे आ। ठीक देखो जरा मैं तुहानूं समझाउण लग्या कि जिहड़ा मैट्रिक्स दा ऑर्डर अगर 2/3 है तो इसनूं तुसीं कह सकते हो रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हो। अगर ऑर्डर 2/2 है इसनूं असीं कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिन्नियां रोज़ हैं उन्ने की हैं कॉलम्स हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होर देखो बहुत सिंपल वे नाल समझांगे बहुत सिंपल वे नाल ये साडे कोल 2/2 दी एक मैट्रिक्स लिखते हैं 2/2 दी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर दी और इस दे विच देखे ना जरा जे मैं आ वाले एलीमेंट्स की गल करा आ वाले एलीमेंट्स की इन्हों असीं कहने हैं डायगनल एलीमेंट्स दीज आर डायगनल एलीमेंट्स। ठीक हो गया। तो होर आप देखिए एक होर देखिए सपोज मेरे को एक मैट्रिक्स है ए इस दे विच 1 2 3 -1 0 2 -2 3 4 3/3 की मैट्रिक्स ले लीजिए असी। तो ए वाला जोड़ा डायगनल एलीमेंट्स हो गए डायगनल एलीमेंट्स किहड़े एलीमेंट्स हैं A11 है A11 है। ठीक है ये क्या है देखो ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम है A22 है A33 है। तो A11 A22 A33 ये किहड़े एलीमेंट्स हैं दीज आर डायगनल एलीमेंट्स हैं मतलब इस आई किस दे इक्वल है जे। और जिहड़े आ वाले एलीमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल जिहड़ा एक कितना एलीमेंट है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है A12 है
ठीक हुण अगर मैं तुहानूं पुछां कि A31 दसो किनवा एलीमेंट है, तो थर्ड एलिमेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना है, -2 है जी। है A13 एलिमेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 है जी। ये और इस दे विच देखो ये इक्वल नहीं ना है, ये किहड़े एलीमेंट्स हैं, दीज आर नॉन डायगनल एलीमेंट्स, नॉन डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डायगनल एलिमेंट्स हैं, और ज़रा नोटिस करो 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स किहड़े हो गए, ये नॉन डायगनल एलिमेंट्स हो गए। तो डायगनल और नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्लीयर हो गए तुहाडे, है ना। ठीक है जी, चलो हुण अगे करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट, ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have। तो ऑर्डर किस तरह बेटे देखियो, जिस तरह फॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 एलिमेंट्स हैं, किसी मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ 6 एलिमेंट्स हैं, जरा देखिए पोजीशन, इस तरह पॉसिबिलिटी है ना, इस तरह पॉसिबिलिटी है, ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ ਇਹ आएगा भी 2 रोज़ हो गए और 3 कॉलम्स हो गए, पर बेटे ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, देखो 1 2 3 4 5 6 भी साढ़े कोल रो एक होए, रो एक होए और कॉलम्स कितने हो जान, 6 हो जान। और इसी तरीके नाल फिर आप पॉसिबिलिटीज़ देखिए, पॉसिबिलिटीज़ देखिए कि ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ऑर्डर पेयर मतलब पहला रो फिर कॉलम, कि अगर रो एक है तो कॉलम 6 होंगे। इसी तरीके नाल अगर रोज़ 2 हैं तो कॉलम्स 3 होंगे, अगर रोज़ 3 हैं तो कॉलम्स 2 होंगे, राइट। अगर साढ़े को रोज़ देखो ये रिवर्स करता 6 हैं तो कॉलम कितने होंगे, 1। तो देखो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन गए, 1 2 3 4 ऑर्डर्स जिहड़े हैं बन सकते हैं। तो इत्थे एक चीज़ नोटिस करो, 1 2 3 6 6 3 2 1 ये सारे की हैं नैचुरल नंबर्स है। तो इट मीनस कि जदों भी तुसी M और N जिहड़ा M और N हुंदा है, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमेशा की होना चाहिए है, एक नैचुरल नंबर होना चाहिए है। और जदों तुसी ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर्ड पेयर च होना चाहिए है, मतलब ऑर्डर पेयर का मतलब की है, पहला रो ही आएगा और फिर कॉलम्स आएंगे, राइट। समझ लगी जी ये। तो ये वाला क्वेश्चन हम तुसी कर सकते हो कि अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स सिर्फ तो सिर्फ तुसी नैचुरल नंबर यूज़ करने हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब की होंदा है कि पहला रोज़ लिखनी है और फिर कॉलम्स लिखनी है। लिखे जी, अगर साढ़े को रो 1 है तो उस दे विच कॉलम्स 8 हो जाएंगे, अगर रोज़ 2 है ठीक तो कॉलम कितने होंगे। तो मैं समझाया सी कि 8 एलीमेंट्स देखो किवें किवें बन सकते हैं, तुसी प्रोडक्ट देख लिया करो, 1 × 8 8 बनता है, 2 × 4 8 बनता है ना, 3 × इस तरह का कोई नंबर ही नहीं है भी 8 बन जाए, तो ये हो नहीं सकता। 4 × 2 8 बन जाता है, ठीक है ना, 8 बन जाता है। 5 × नथिंग, कोई नैचुरल नंबर है नहीं भी 8 बन जाए, ठीक है, छड़ता। इस तरह 6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता। 8 × 1 8 हो सकता है, ठीक हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर साढ़े को फिर किहड़े बन गए, 2 4, अगला 4 2 8 1। तो साढ़े को पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, 4 हो गए। 4 डिफरेंट ऑर्डर्स दियाँ मैट्रिसेस बन सकती हैं जिन्हां विच 8 एलीमेंट्स होंगे। समझ आ गया बेटे, ठीक है। हाँ जी बेटा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, देखो जनरल फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तुहानूं दस्सिया सी ना कि ith रो jth कॉलम, और आई किस नाल लिंक कर दिया करो, रोज़ नाल, और जे किस नाल लिंक करा करो, कॉलम नाल।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ i ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ 1 2 3 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ 3 ਹੈ ਔਰ j ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਾਲਮ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ 1 2, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ 3/2 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ 6। ਤੋ ਜਸਟ ਸੇ ਇਟ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖ ਦਈਏ ਔਰ 3/2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 3/2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਸ 'ਚ 6 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, 3 ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ 2 ਕਾਲਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं। तो जरा देखिए किमें बनेगा, 3 रोज़ बनाइए, पहले बनाया करो, देखो ए लिख लिए, लो जी 3 रोज़ बन जाएंगे, 2 कॉलम्स है ए। हुण इन्हां नूं आपां एड्रैस दईए ना, तो फस्ट रो फस्ट कॉलम, रो 1 है, फस्ट कॉलम है, फस्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो सेकंड कॉलम है। तो हम दस्या सी ये इस नाल मैच करेगा, ठीक है जी, समझ लगे। इस तरफ आन गया कि कॉलम्स और इस तरफ की आन गया रोज़, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक हो गया। अच्छा हुण इस दा सानू फॉर्मूला भी देता उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल असी फस्ट रो फस्ट कॉलम का एलीमेंट निकालना है, इट मीनस इत्थे आई 1 है और जे भी कितना है 1 है। तो ए 1 1 किद्दां निकलेगा, आ वाला फॉर्मूला पिक करो जी, ये वाला पिक करो, इस दे विच ए 1 1 निकालना है। तो आई की जगह तो इत्थे 1 पुट कर दो, आई जगह 1 -3 और जे की जगह तो भी कितना आ गया 1 आ गया, हाफ 1 -3 -2 आ गया, कैंसिल कर दो, 2 नाल 2 -1। तो ये जोड़ा फस्ट एलीमेंट है, एलीमेंट इन फस्ट रो फस्ट कॉलम, इसका आंसर कितना आ गया तो कोल -1, ठीक। इस तरीके नाल आ वाला एलीमेंट कढ़िए A1 2, तो आई की जगह तो 1 आ गया और जे की जगह तो कितना आ गया 2 आ गया। किस फॉर्मूले, इस फॉर्मूले 1 -3 × 2, तो 1 - 6 इज़ -5, हाफ इंटू -5, तो एलिमेंट -5/2 आ गया। इसी तरीके ना बाकी दे एलीमेंट्स भी निकाल दिए, चलो जल्दी नाल निकाल दिए इसनों। A2 1 हाफ, आई की जगह तो बेटे हुण कितना आ गया 2 आ गया, 3 × 1, 2 - 3 इज़ -1, -1/2 आ गया। दैन A2 2, हुण इस दे विच की है, आई भी 2 है और जे भी 2 है। 6 2 - 6 इज़ -4, -4 कैंसिल कर दो, -2 आ गया। एंड दैन सिमिलरली A3 1, हुण आई 3 पुट करना इत्थे, हाफ 3 1 0 आ गया, 3 - 3 0, 0 upon anything is 0। एंड फाइनली A3 2 हाफ, आई कितना है 3 -3 × 2, तो 3 - 6 -3 आ गया, -3/2 विल बी द एलीमेंट दिस वन। हुण इसनों मैट्रिक्स जो है उसके सारे एलीमेंट्स आप फाइंड कर ले, सारे एलीमेंट फाइंड कर ले, सारे एलीमेंट्स में तुसीं इत्थे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल A1 1 साढ़े कोल -1 आया, फिर -5/2 आ गया, -1 -5/2, बस जिहड़ी जगह ते आपां निकालना वही निकालो। A2 1 -1 से और A2 2 -2, A3 1 0 से एंड -3/2 दी फाइनल वन। तो ये राजे तुहाडा आंसर आ गया, ये असी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिते, ठीक है। एग्जाम दे विच इस दे विच तुहानूं ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्मूला दिता होएगा, आपां वैसे एक बेटे ले लैंदे आ, जिस तरह 2i - 3j होल स्क्वायर अपॉन से 4, और वो तुहानूं कहंदा है कि इस दा तुसी ये एलीमेंट निकालो, ये कितना होएगा।
तो बेटे सानू पता है हुण पूरी मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सानू इक्को ही एलीमेंट निकालना है। तो आई की जगह पर 3 आ जाऊगा और जे की जगह पर 4 आ जाएगा और एलीमेंट आ जाएगा साढ़े कोल। देखिए कितना होएगा एलीमेंट, वो कितना होएगा देखो 2 इंटू आई कितना है 3 है, 6 हो गया। जे कितना है 4, 3 इंटू 4 12, 6 माइनस 12 होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 6 स्क्वायर 36 अपॉन 4। तो 9 जो है एलिमेंट आ गया जो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। फाइन। और इस ਦੇ ਵਿੱਚ अगर सैकेंड क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ कि इस नंबर ऑफ एलीमेंट्स अगर अपन ऑर्डर दिता हो, से ऑर्डर देता है कि ऑर्डर 3/4 मैट्रिक्स है तो उस नंबर ऑफ एलीमेंट्स कितने होंगे, उसका आंसर 12 होएगा। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि कितना ਤੁਹਾਨੂੰ ऑर्डर दिता होया, नंबर ऑफ एलीमेंट्स ऑर्डर ਤੇ ही डिपेंड करेंगे। तो बेटे आई थिंक ये क्वेश्चन समझ लग गया। बेटे हुण आपां करन लगे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सब तो पहला है कॉलम मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल है, ऐसी मैट्रिक्स जिस दे विच एक सिंगल कॉलम होवे। मैट्रिक्स which has one column, सिर्फ एक कोई कॉलम होए, राइट। मतलब उसका ऑर्डर फिर की होएगा m/1, ऑर्डर उसका ही होएगा m/1। नंबर ऑफ रोज जिन्नियां मर्जी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप करते हैं कोई मैट्रिक्स ए ले लेने, देखो 1 0, इस रोज़ कितनियाँ हैगियाँ 2, कॉलम है 1। एक बी मैट्रिक्स ले लेने, -1 2 3, रोज़ 3 हैं एंड 1 कॉलम ओनली। तो क्लियर हो गया जी। तो दिस इज़ व्हाट एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सी मैट्रिक्स है, जितना मर्जी तुम कर लो हम इसनों। तो नंबर ऑफ रोज़ 4 है, 4/1। इस तरीके नाल हुण तुसीं गैस कर सकते हो रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स which has one row only, और नंबर ऑफ कॉलम्स जिन्हें मर्जी ले लो। तो लेट स्टार्ट। कोई आप लिख लिया 1 2, देखो एक रो है, कॉलम्स 2 हैं। एक रो है, पहला रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो गए। फिर एक बी लिख लो 0 1 3, नंबर ऑफ रोज 1 रिमेन 1, कॉलम्स 3 हो गए। सी लिख लो नंबर ऑफ रोज 1, कॉलम्स इस तरह 4। इट मीनस इस मैट्रिक्स का जोड़ा ऑर्डर होएगा ऑलवेज 1/n होएगा। समझ आ गया जी। तो ये साढ़े को रो मैट्रिक्स आ गई। इस तो बाद स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। तो ऐसी मैट्रिक्स जिस दे विच नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स हो जान इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जान सेम। तो इस तरह की केड़ी मैट्रिक्स हो सकती है, आप पहला कर चुके हैं 0 1 2 3, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक, बी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर दी ले लो, 3/3 1 2 3 1 2 3 3 इस तरह 1 2 3 3/3 ऑर्डर दी होगी मैट्रिक्स। कोई भी एलीमेंट कोई भी फंक्शन लिख सकते हो इस दे विच। 4/4, तो इस दे विच एम और एन सेम होंगे। तो इसनों आप लिख किवें सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी लिख दो तो भी चलेगा। अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जोड़े ने वो 2 ही होंगे। 2/2 दी है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਕੁਆਇਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਏ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਟ ith ਰੋ jth ਕਾਲਮ, ਔਰ i ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, i ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ ਟੂ m ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ j ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲੀਅਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਈਏ AIJ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ m/m ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ m = n ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ m/m ਲਿਖ ਲਓ, n/n ਲਿਖ ਲਓ, लेकिन ਜਦੋਂ m = n लिखता तो ये की होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। डन जी, ठीक है। तो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं इस तरह लिखा AIJ तो एलिमेंट की गल हो रही है, तो अगर i = j लिखा तो इसका मतलब की सी भी जे i 1 है तो j भी 1 है, जे i 2 है तो ए भी 2 है, A1 1 A2 2 A3 3, है ना। आप चलिए देखो तुम दिखा दें ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਏ, ਲੱਭੀਏ ਆ ਲੱਭ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ A11 A22 A33, है ना, i = j है। तो अगर i = j है तो मतलब की हो गया, वो डायगनल एलिमेंट्स है, ठीक। और अगर i ≠ j है, देखो इस दे विच i और j इक्वल नहीं ना है, i और j इक्वल नहीं है, i और j इक्वल नहीं है, तो ये नॉन डायगनल एलिमेंट्स है। तो इसकी हुण सानूं जरूरत पेगी सारियां डेफिनेशनस वास्ते कि अगर i = j है तो ये किहड़े एलीमेंट्स हो गए, ये डायगनल एलीमेंट्स की गल हो गई, किस दे विच, स्क्वायर मैट्रिक्स दे विच। और अगर साडे कोल i ≠ j है, इट मीनस AIJ किस नूं रिप्रजेंट करता है, नॉन डायगनल एलिमेंट्स नूं रिप्रजेंट करेगा। समझ लग गई जी, ठीक है। तो ये चीज़ का बेटे ध्यान रखियो। हुण हाँ जी बेटा, तो डायगनल मैट्रिक्स हुण आपां डिफाइन करते हैं, ए मैट्रिक्स हुज नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर what, 0। this is important, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0। पर वो मैट्रिक्स केड़ी होनी चाहिए है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए है जिस दे नॉन डायगनल एलिमेंट्स होंगे 0। हुण इसकी अगर आप एग्जाम्पल ले लीए, ठीक, इसकी एग्जाम्पल दे विच देखो एक एक्सैप्शन जरूर है, ये इक्को एलीमेंट है से 3 है, ठीक है। तो यह डायगनल मैट्रिक्स कही जाएगी। बाकी तुसीं देखो, बाकी आप कर लेते हैं, -1 2 ये डायगनल हो गया, बाकी एलीमेंट्स नॉन डायगनल 0। एक और देख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, 3/3 ऑर्डर ले रहे हैं, हाँ जी, लिखे 1 √2 3 नॉन डायगनल एलिमेंट्स नॉन डायगनल हो गए जी, ये सारे हो गए 0। तो ये वाली मैट्रिक्स जी हो गई डायगनल मैट्रिक्स हो गई। तो इन जनरल इनू आप देखो किमें लिख सकते हैं, लिखिए कि मान लो C है, ठीक है, तो इनके एलीमेंट्स को आप CIJ लिख सकते हैं, ठीक। और अगर नॉन डायगनल लिखने हो तो की लिखते हैं आप i ≠ j। तो नॉन डायगनल एलीमेंट सारे इसके की होंगे 0 होंगे। दिस इज़ इट, इन्ना लिख दो सफिशेंट है। जे तुसीं आ नहीं लिखना
तो इन्ना लिख दो सफिशेंट है। पर आ ना लिखना जरूरी है नॉन डायगनल एलीमेंट्स वास्ते। इस वास्ते भी देख लो BIJ ये सारे एलीमेंट्स की हैं 0 फॉर I नॉट इक्वल टू J नॉन डायगनल एलीमेंट्स वास्ते। पर होनी की चाहिए है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है जी 3/3। तो ये तो है ही 1/1 है ना, इक्को ही रो है तो इक्को ही कॉलम है, सिंगल एलीमेंट है, इक्को ही एंट्री है। ठीक है, तो इसनों डायगनल मैट्रिक्स की कैटेगरी च आप रखते हैं। हाँ बेटे अगला है स्केलर मैट्रिक्स की होंगी है। स्केलर मैट्रिक्स तो बड़ा सिंपल है। स्केलर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स की एक खास टाइप है। तो इस दे विच की हुंदा है मैं तुहानूं आइडिया दे दिंदा। स्केलर मैट्रिक्स दे विच ना जिवें मान लो 2/2 दी है, डायगनल मैट्रिक्स की टाइप है तो नॉन डायगनल एलीमेंट्स की होणगे इसदे 0 होणगे, लेकिन डायगनल एलीमेंट सेम स्केलर होएगा, सेम स्केलर इक्को ही नंबर होएगा जी, सेम ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आप ले लें फिर वही एक पहले एक्सैप्शन कर लिए जी। सपोज ये स्केलर मैट्रिक्स है, इत्थों शुरू करते हैं। हुण देखो जिस तरह सपोज -1 है, -1 है 0 तो इसे स्केलर -1 है। ठीक है, एक होर देख लो, एग्जाम्पल होर देख लो, C मैट्रिक्स ले लें √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। तो ये भी किस दी एग्जाम्पल है, स्केलर मैट्रिक्स दी एग्जाम्पल है। पर एक चीज़ नोटिस करो की है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस दे विच अगर इनू आपां डिफाइन करना होया C मैट्रिक्स नू से आपां डिफाइन करना करिए CIJ इस दे विच की है 0 है, किहड़े जिहड़े नॉन डायगनल है। नॉन डायगनल वास्ते आपां की करते हैं I नॉट इक्वल टू J। आ देखो नॉन डायगनल एलिमेंट सारे की हैं 0 और CIJ सारे सेम स्केलर होएगा। √3 है या K है जो भी लिखना है, ये √3 है फॉर I इक्वल्स टू J। ठीक है, तो एग्जाम दे विच अगर तुहानूं आ जाए कि कोई एक मैट्रिक्स है जिस दे विच BIJ इक्वल्स टू 0 है फॉर I नॉट इक्वल टू J और BIJ इक्वल्स टू K है, फिर K इज़ एनी स्केलर फॉर I इक्वल्स टू J। I इक्वल्स टू J मतलब डायगनल एलिमेंट्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स तुहानूं कहा भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैगी है, तो उस केस च अगर ये स्केलर है, डायगनल एलिमेंट स्केलर है, तो दैट इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स। एक्सैप्शन भी याद रखियो, जिवें डायगनल मैट्रिक्स जिवें हैगी है, डायगनल मैट्रिक्स तुहानूं दसियां सीगियां। ठीक है, तो आ देखो 4 है। ठीक है, एक डायगनल मैट्रिक्स जिहड़ी सीगी 3 है। ये दोनों कैटेगरीज दे विच आ जांदा तुहाडा, दोनों कैटेगरी दे विच आ जाऊगा, स्केलर मैट्रिक्स च भी ते डायगनल मैट्रिक्स दे विच भी। उस तो बाद आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। सब तो पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होंदी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंदी है। ठीक, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है तो AIJ है, ऑर्डर उसका हैगा से n/n स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इस दे विच देखो मैं इस तरह लिखूँगा AIJ तुहाडे कोल है 0 अगर I नॉट इक्वल टू J है, मतलब इन्हू पढ़ना आ गया नॉन डायगनल एलिमेंट्स वास्ते 0 और AIJ इक्वल्स टू सारे 1 है इफ़ I इक्वल्स टू J। मतलब डायगनल एलिमेंट्स जिहड़े ने उसदे की होणगे सारे 1 और नॉन डायगनल सारे 0। तो एक्सैप्शन एक होंदी हैगी है, देखो किहड़ी वाली है, देखियो जरा 1। उनके बच्चे कहते सर इस दे विच इस तरह तुसीं क्यों लिखिया, तो डेफिनेशन फॉलो कर लो। देखो डेफिनेशन 1/1 है ना, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो डायगनल एलिमेंट बनया तो 1 आप डिफाइन किया तो 1 होएगा ना। ठीक है, होर देखो कोई B मैट्रिक्स ले लें 1 1 बाकी नॉन डायगनल 0 हो गए जी। स्केयर मैट्रिक्स हो गए 2/2 दे। एक मैट्रिक्स C ले लें
आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3/3 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਜੂਲੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਜੂਲੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ए बी सी मैट्रिसेस हैं, राइट, मैट्रिसेस है, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ए प्लस बी माइनस 2C प्लस 5 ऐसा करके ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ठीक है, और इक्वल्स टू से कोई नल मैट्रिक्स है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣੇ। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ये ऑड वन आउट है, तो याद रखना कि जो मैट्रिसेस इन्वॉल्व है ना, जो मैट्रिक्स इन्वॉल्व है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये जी एडिशन है इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स जो भी दिता होएगा वो होएगी। तो उस केस तुसी की करना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाओगे जो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, उस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए है। तो 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਉੱਥੇ, 5 टाइम्स दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ, फॉर एग्जांपल ए बी और सी, ये सारे 3/3 ਆਰਡਰ ਦੇ ਨੇ। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓਗੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ 3/3 ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, ਇਹਨੂੰ याद रखना। हाँ बेटे, हुण आ गया जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो ये बड़ा सिंपल है, ये मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। हुण इसका जिहड़ा सिंबल है, इसनूं असीं इस तरह, ये नल मैट्रिक्स ओ लिख लो बेटे, बिग ज़ीरो लिख दो, तो दिस इज़ नल मैट्रिक्स। ये वाला सिंबल तो नज़र आएगा। ये मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक। तो इसका ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी है, नो नो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। हाँ जी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, डिपेंड करेगा साढ़े क्वेश्चन के उपर, डिपेंड करेगा जी, साढ़े क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ऑफ एनी ऑर्डर, नो स्पेसिफिक ऑर्डर, इसका कोई ये नहीं है कि इको ही ऑर्डर तुसी हमेशा लेना है, नो, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। सो दिस इज़ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड इट स्क्वायर भी हो सकती है, मतलब ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक हो गया जी, राइट। बेटे अगला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो दो एलिमेंट्स हैं, दो मैट्रिसेस ले रहे हैं, A11 A12 A21 A22, ठीक है। और एक मैट्रिक्स राजे आप ले रहे हैं B11 B12 B21 B22, सिंपल। तो A इक्वल्स टू B तो ही पॉसिबल है, मैट्रिसेस ताई इक्वल होंगे अगर A11 किस दे इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंगली B11 दे इक्वल है। A12 किस दे इक्वल है, B12 दे, ठीक है। A21 किस दे इक्वल है, B21 दे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग। A22 किस दे इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग B22 दे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैट्रिसेस आप कहेंगे इक्वल है। तो इस की इंपॉर्टेंट हो गया, की इंपॉर्टेंट हो गया, नंबर 1 ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो की होने चाहिए हैं, इक्वल या सेम, इक्वल या सेम होने चाहिए हैं, ठीक है जी। तो इस ते बेस्ड आप जोड़े ने क्वेश्चनस करते हैं, ठीक है जी। बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स तो आप शुरू करांगे, ठीक है।
बेटा एग्जाम्पल 4th और 5th इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। तो ਵੀਡੀਓ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, तो मैं कोशिश करदा एग्जाम्पल 5th ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ एग्जाम्पल 4th ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, एग्जाम्पल 4th ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਡੂ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, है ना। तो 2a + b इक्वल्स टू 4 और a - 2b इक्वल्स टू -3। तो देखो 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। तो उस तरह कर लो। किस तरह ਤੁਸੀਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। तो 2a + b इक्वल्स टू 4, 2a - 4b इसमें 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ इक्वल्स टू -6। ठीक है, 2 × -3 और एलिमिनेशन मेथड माइनस पॉजिटिव हो गया, b + 4b 5b, राइट। 4 - 6 और अगर आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 + 6 कितना 10 और b हो गया साढ़े को 2 आ गया। और b = 2 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ फ्रॉम फर्स्ट से, तो 2a + b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ इक्वल्स टू 4, 2a = 4 - 2 इज़ 2, a इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई है, डिवीज़न च आ गया 2/2 इज़ 1। और सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5c - d, आ वाला एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग 11 ਦੇ इक्वेट कर लो, और 4c + 3d 24 ਦੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 3rd ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, 4th ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਆਪਾਂ d ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ 3 ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, 15c - 3d = 33। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ d ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤੇ हैं 24। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਹ पॉजिटिव है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ सबट्रैक्ट करोगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो एलिमिनेट नहीं होएगा। तो इन्होंने आप ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ऐड कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, कैंसल आउट 19c ਹੁਣ ऐड कर रहे हैं, तो 7 5 c is 57/19, 3 आ गया। तो when c is 3 ਹੁਣ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ फ्रॉम थर्ड 5c है, 3 आ गया अपने को, -d = 11, 15 - d = 11, 15 - 11 4 हो गया जी, d ਨੂੰ उधर ले जाओ, तो d = 4 आ गया, c = 3 आ गया। तो दिस कंप्लीट्स ओवर दिस इंट्रोडक्शन। तो बेटे चैनल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, तो कुछ भी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਐਕਸਰਸਾइज 3.1 अगर खुद ट्राई करोगे तो बेटे बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਸੋਲਵਡ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾइज, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।